आइए उसी मौजू को आगे लेकर चलते हैं। One thing that has captivated the mind of man throughout human history. नस्ल इंसानी की तारीख में एक बात ने लोगों के ज़हन को जकड़ रखा। It is the resurrection of the dead. और ये है मुर्दों का जिंदा किया। But how is it possible? ये कैसे मुमकिन है? If you open all the books of the whole world, if you open all the books of the whole आप world, दुनिया की तमाम किताबों को खोल कर देखें, you will not find any genuine account of the resurrection of the dead. आपको कोई सच्चा ऐसा मौका नजर नहीं आएगा कि किसी मुर्दे को जिंदा किया गया हो। They record the death of people, वो लोगों की मौत के बारे में अंदराज करते but हैं, nobody records the resurrection of the dead except one. लेकिन किसी भी जगह पर मुर्दों में से जिंदा होने का सच्चा जेन्युइन रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, सिवाय एक के। Only one book, सिर्फ एक किताब named Bible, जिसे आप बाइबल मुकद्दस कहते हैं, recorded the resurrection of the dead. Hallelujah! के जिंदा होने का रिकॉर्ड मौजूद है। No, it is not enough to give tribute to the Holy Bible with just claps. I think you should stand up for a while and honor the Holy और जो Bible. समझते हैं वो बाइबल के एहतराम में खड़े होकर जोरदार तालियां बजाएं। Hallelujah! Hallelujah! Glory to God. ब्रदर, इसको Glory to आवाज God. नहीं आ रही। खुदा के नाम को जलाल देंगे। It is the word of God that gives strength. ये खुदा का It कलाम is the है, word of God that brings healing into our body. ये खुदा का कलाम है जो हमें शिफा It is बख्शता the है। word of God that resurrects the dead. Hallelujah! और ये खुदा का कलाम है जो मुर्दे में जान डालता है। हालेलुया! Hallelujah! Be seated. आप तशरीफ रख सकते हैं। In the Bible, बाइबल मुकद्दस में from Genesis to Revelation, पैदाइश से लेके मुकाशफा तक we find 9 different accounts of the resurrection of the dead. हमें कम से कम 9 ऐसे मकामात मिलते हैं Where Elijah raised the dead, जहां पर एलिया ने मुर्दा जिंदा किया, Elisha raised the dead, अलीशा ने मुर्दा जिंदा किया, Paul and Peter also raised the dead. पौलुस और पतरस ने भी मुर्दा जिंदा किया। But here's something they share in between them. There's something common. लेकिन एक बात इन सब में कॉमन थी, They used the power of God to raise the dead. उन सब ने खुदा की कुदरत का इस्तेमाल करके मुर्दा जिंदा किया। Yes, even Elijah prayed to God for the resurrection of the dead son of a widow. यहाँ तक कि एलिया ने भी खुदा के आगे तरले मिन्नतें दुआएं की ताकि बेवा का मुर्दा जिंदा किया जाए। But here tonight, लेकिन आज शाम I want to tell you about a person. मैं आपको एक शख्स के बारे में बताना चाहता हूँ। He does not need to call on someone else for the resurrection of the dead. ये ऐसा शख्स है जिसने किसी से दुआएं नहीं की कि मुर्दा जिंदा हो। He raised the dead by his own power. उसने अपनी कुदरत से मुर्दे में जान डाल दी, अपने By इख्तियार his से। own dunamis. Do you know the name of that person? Do you क्या आप know उसका the नाम name जानते of हैं? that person? क्या आप उसका नाम जानते हैं? Shout out loud, what is his name? क्या आप उसका नाम जानते हैं तो ऊंची आवाज से उसका नाम पुकारो, यीशु नाम। Hallelujah, hallelujah. So mankind has been obsessed with the raising of death throughout our history. ये तारीख में हम देखते हैं कि लोगों के जहन पर एक अजीब सा दबाव और दबदबा होता है कि अगर कोई मुर्दा जिंदा हो जाए। In our literary and cinematic history, we have certain books and movies which have captivated generation after generation. तसानीफ में, फिल्मों के अंदर मुख्तलिफ मौकों पर लोगों ने इस डिजायर का इजहार लिख कर किया कि कोई मुर्दा जिंदा किया जाए। And in our scientific history, और साइंसी तारीख में भी the goal has always been to prolong or to bring back to life what is dead. कोशिश यही रही कि किसी तरह से कोई ऐसा तजर्बा हो कि किसी मुर्दे में सांस लौट आए। But here's a plot twist. और यहाँ पर आपको एक ट्विस्ट नजर आता है। These scientists who tried to raise the dead, they're trying from decades, and those who try to raise the dead from decades, they themselves have died. हाँ, ये बता रहे हैं भाई यहाँ पर कि बहुत से साइंसदानों ने, डॉक्टरों ने कोशिश की, तजर्बे करते रहे लाश को रख के कि इसको कोई ऐसी दवाई दें कि ये जिंदा हो जाए। वो दवाइयों के नुस्खे लिखते लिखते खुद मर गए, मुर्दा जिंदा नहीं हुआ। But only one man लेकिन एक शख्स who के बारे में died and rose from the dead on the third day. मरा, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, He is the power. He is the dunamis. Hallelujah. ये वो Science कुदरत has है। failed, ये है वो डूनामिस। साइंस नाकाम हो गई, but Jesus prevailed. लेकिन Hallelujah. यीशु कायम रहा। Oh, he had to because he was the Son of God. और इसलिए उसने रहना ही था क्योंकि वो कौन था? खुदा का बेटा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Please be responsive. When I say hallelujah, you must shout hallelujah because it is for the glory of God. देखें, मैं कल्ला नारा मारन नहीं आया हालेलुया दा। जदों मैं हालेलुया बोला ते तुसी भी की बोलना है? हालेलुया। Hallelujah.
So the Mayans, Mesopotamians and Egyptians, all of them believed that their kings and queens would one day rise of the dead. Rise मयान from the की, dead. मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशंस और मिस्री सिविलाइजेशंस सकाफतों के अंदर ये बात दर्ज थी और वो ये प्रैक्टिस करते थे कि वो लाशों को क्या लगाते हैं, मसाले लगाते थे. So they spiced their bodies, the bodies of the kings and queens, and buried them. वो अपने बादशाहों को, मलकाओं को मसाले लगा कर रखते थे. They hoped that they will one day rise up from the dead. इस ख्वाहिश के साथ कि एक रोज वो मुर्दों में से जी उठेंगे. Dear Christians, the same they also did with your king. सॉरी, The same they also did with their king. The same also happened with our king. यही काम यीशु मसीह के साथ भी किया गया कि उसको मसाला लगाकर उसकी They लाश को spiced रख this दिया. body with fragrances and aloes, उन्होंने उसके जिस्म को भी, लाश को भी मसालों के साथ भर दिया, and they buried him. और उसको दफना दिया. But here's the difference. यहाँ पर एक फर्क है. These kings are still dead with spices applied to their bodies. फर्क ये है कि मसाले लगी हुई उन बादशाहों की लाशें आज भी कब्र में पड़ी हैं मुर्दा But हालत में. our king, लेकिन जो हमारा बादशाह he है, does not need, oh yes, he does not need any spice to remain fresh in the dead. उसको किसी He rose मसाले, up from the dead on the third day. हमारे Hallelujah! बादशाह को मसालों के साथ ताज़गी की Hallelujah! जरूरत नहीं. वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और हर सुबह ताजा है. हालेलुया! Hallelujah! These kings are they're still buried with their kingdoms also buried. वो बादशाह भी दफन है, उनकी बादशाहतें भी उनके साथ दफन हैं. But the king of Christians, लेकिन जो मसीहों का बादशाह है, he's in heaven with his kingdom alive. Hallelujah! उसकी बादशाहत आज भी जिंदा है. और भाई ने कहा हालेलुया, और हमें क्या कहना है? Hallelujah! हालेलुया. Hallelujah! He's the only one who killed the death. ये वाहिद शख्स था जिसने मौत को भी मौत दे दी. What is the name of that person? What is the name of that king? Do you know the name of that king? क्या नाम है उस बादशाह का? Hallelujah! This same Jesus is here tonight to set you free. और वही बादशाह यहाँ पर है ताकि आपको आजादी बख्शे, Let's रिहाई have a look बख्शे. at Luke chapter 7, verse 11 to 17, where Jesus performed a resurrection miracle. Luke Luke chapter 7, verse 11 to 17. लूका की इंजील उसके 7वें बाब की 11वीं आयत से 17वीं आयत तक. Soon afterward, Jesus went to a town called Nain, थोड़े अरसे के बाद ऐसा हुआ कि वो नाइन नाम एक शहर को गया and his disciples और and a उसके large शागिर्द- crowd went along with him. और बहुत से लोग उसके हमरा थे. As he approached the town gate, जब वो शहर के फाटक के नजदीक पहुंचा a dead person was being carried out, तो देखो एक मुर्दे को बाहर लिए जाते थे. the only son of her mother, and What? she was a widow. वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी. And a large crowd from the town was with her. और शहर के बहुतेरे लोग उसके साथ थे. When the Lord saw her, उसे देखकर खुदावन को तरस आया his heart went out to her and he said, "Don't cry." और उसने तरस से भरकर उससे कहा मत रो. Then he went up and Pero- touched the coffin, फिर उसने पास आकर जनाजे को छुआ and those carrying it stood still. और उठाने वाले खड़े हो गए. He said, "Young man, उसने कहा ए जवान, I say to you, get up." मैं तुझसे कहता हूँ उठ. The dead man sat up वो मुर्दा उठ बैठा and began to talk. और बोलने लगा And Jesus gave him back to his mother. और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया. They were all filled with awe and praised God. और सब पर दहशत छा गई और वो खुदा की तमजीद करके कहने लगे A great prophet has appeared among us, they said. कि एक बड़ा नबी हम में बरपा हुआ है God has come to help his people. और खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो की है. This news about Jesus spread throughout Judea and the surrounding country. और उसकी निस्बत ये खबर सारे यहूदिया और तमाम गिरदो नवाह में फैल गई. Amen. Amen. आमीन. One of the definition of a miracle मोज़ात की एक डेफिनेशन तारीफ ये भी है is of a dynamite, the power that breaks open the closed doors immediately. जो कि डायनामाइट से जिसको तशबीह दी जाती है, एक ऐसी ताकत जो किसी भी चीज को भग से उड़ा दे. And my Jesus has that power. और मेरे यीशु के अंदर ऐसी पावर काम करती है. One day, the man who had this power, एक रोज उस शख्स जिसके अंदर ये कुदरत थी, he entered a town called Nain. वो एक कस्बे में, एक शहर में दाखिल हुआ जिसका नाम क्या था? नाइन. And the disciples were with him. और शागिर्द उसके साथ थे. And a large crowd was with him. और एक बहुत बड़ा हजूम उसके साथ था.
See, the disciples of Jesus, they always followed Jesus. आप गौर करें यहाँ पर कि यीशु के शागिर्द हमेशा यीशु के पीछे पीछे चलते हैं। Yes, they did not lead or dictate Jesus, वो कभी भी ऐसा नहीं करते कि यीशु को ओवरटेक मार दें, but they always followed him. वो हमेशा उसके साथ चलते हैं। How many of you here follow Jesus? आप में से कितने लोग यीशु के पीछे पीछे चलते हैं? वो जरा हाथ तो दिखाएं। Don't you follow Jesus? क्यों भाई जी, तो अनु की मसला है, तो सीधी चल दे। Just raise up your hands if you follow Jesus. अगर आप यीशु के पीछे चलते हैं, पीछे पीछे चलते हैं, तो हाथों को जरा लहरा के बताएं। Oh, praise God. Hallelujah. Oh, खुदा I की see हम these हो। hands in the back. God bless you there. मैं आपके हाथों को भी God देखूं bless all of पीछे। you people. खुदा उन आप सबको बरकत दे। So, when they reached the town, जब वो उस कस्बे में पहुंचे, there was a very sad moment. बड़ा गम ज़्यादा दुखी लम्हा था। When they looked up, जब उन्होंने ऊपर देखा there was a funeral कि एक जनाजा आ रहा है, which was being led by the dead. और वो जनाजा जिसकी रहनुमाई एक मुर्दा कर रहा था, And a large number of people were following that dead body. और एक बड़ा हजूम उस डेड बॉडी के पीछे पीछे चल रहा था। And that dead body was leading them all to the graveyard, out of the city. और वो मुर्दा लोगों को शहर से बाहर कब्रिस्तान में लेकर जा रहा था। I want you to remember this, that this city name in its name in its original context means the land of green pastures. जी, इसका मतलब है, नाइन शहर के नाम का मतलब है हरी हरी चरागाहें। क्या मतलब है जी? So the dead man, this procession, the first procession is going out of the city, लिहाजा एक जुलूस जो शहर से बाहर, जिसका मुर्दा रहनुमा था, बाहर जा रहा था, and the second procession was entering the city. और दूसरा And it जुलूस was शहर के अंदर आ रहा था, And it was being led by Jesus. और वो दूसरा जुलूस उसका रहनुमा यीशु था। In other words, we would say the dead man was leading them all out of the land of green pastures. यहाँ पे फिर इसका मतलब हमें ये नजर आ रहा है कि वो मुर्दा लोगों को हरी हरी चरागाहों से पार लेके जा रहा है, And now Jesus was leading them into the land of green और pastures. यीशु मसीह Hallelujah. लोगों को हरी हरी चरागाहों में ले जाता For the है। same Jesus, the psalmist said, He makes me lie down in green pastures. और वही बात ज़बूर नबी 23 ज़बूर में लिखता है, वो मुझे हरी हरी, Hallelujah. फिर से बोल दे, वो मुझे, Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। So this dead man that we see in Luke chapter 7, ये जिस मुर्दे को हम लूका की इंजील 7वें बाब में देख रहे हैं, he was the only son of her mother. ये अपनी माँ का इकलौता बेटा था। He was the only son of her widowed mother. वो अपनी बेवा माँ का इकलौता बेटा था। But this only son of the mother, लेकिन ये इकलौता बेटा जो उस बेवा का था, he did not know that he was about to have an encounter with the only son of God. उसको तो ये जिंदगी में भी इल्म Hallelujah. था, मौत के बाद क्या इल्म होना था कि उसका जो सामना होगा वो खुदा के बेटे से होगा। On one side, there is the son of the mother. एक तरफ एक माँ का बेटा है, On the other side, there is a son of God. और दूसरी तरफ खुदा का बेटा है। On one side, the leader is dead and leads his multitude out of the city, out of the doors of the city. एक तरफ मुर्दा रहनुमा है और लोगों को हरी हरी चरागाहों से मौत की वादियों में ले जा रहा है। Oh, but on the other side, there is the King of Kings who leads his multitude to heaven. I'll tell you why he leads his multitude to heaven. He said, I am the door. He's the door. Hallelujah. और दूसरी तरफ का रहनुमा बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद है, और वो क्यों लेकर लोगों को हरी हरी चरागाहों में आ रहा था? क्योंकि हरी हरी चरागाहों में दाखिल होने का दरवाजा, उसने कहा दरवाजा मैं हूं। He said, I am the door. उसने कहा मैं दरवाजा He हूं। leads his multitude to the heavenly city. मैं वो दरवाजा हूं Through him. Hallelujah. जो जितना बड़ा मजमा उसके पीछे चले, वो उसके पीछे चले तो सही, Hallelujah. वो आसमान तक लेकर This is the difference between leaders. ये फर्क होता है लीडर में और एक It is और the leader। good versus bad. ये होता है अच्छे और बुरे में फर्क। It is the darkness versus light. ये तारीकी और रोशनी का, It is the corruptible versus incorruptible. एक गलने सड़ने वाले का और हमेशा ताजा दम रहने वाले It का। is heaven versus earth. ये आसमान और जमीन का मुआवजा हो रहा है, Oh yes, this is sorrow versus joy. और ये वाकई गम और खुशी के Well, दरमियान this मुआवजा is है। death versus dunamis. और ये मुआवजा किया जा रहा है मौत का और डूनामिस ताकत So when में। Jesus saw that mother,
तो जब यीशु ने उस माँ को देखा, he was filled with compassion for her. वो उसके लिए तरस से भर गया। Today we are compassionate about different things in life. हम अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजों के लिए तरस से भरते हैं। When you see the poor people, you may have had compassion on them, गरीबों को देखकर हम तरस से भर जाते हैं, or a sick person, or a crippled या person. किसी बीमार शख्स को या लंगड़े को देखकर हम तरस से भर जाते Or हैं। at times you may have compassion on your children. कभी-कभी आपको अपने बच्चों पर बड़ा तरस आता But है, this is something very pure and very different. लेकिन ये बड़ा कोई खास और बड़ा फर्क मामला है। Yes, dear Christian, it is the same compassion that led Christ to be crucified on the cross. एक मसीह के अंदर ऐसा तरस आ जाना जैसा मसीह का तरस था जो सलीब पर था। He said to the mother, "Don't cry." उसने उस औरत से कहा मत रो। Today many of you mothers here are crying for your dead sons. हो सकता है यहाँ पर कई ऐसी औरतें बैठी हों, माएं बैठी हों जो अपने मुर्दा बेटे के लिए रो चुकी हैं। Maybe you're crying for your lost sons, your sons that have gotten away from Christ into the darkened territory. और हो सकता है आप अपने उन बेटों के लिए भी रो रही हैं जो खो गए हैं, तारीकी में, गुनाह के अंधेरों में गुम हो गए हैं। Many fathers here are crying for their dead, their lost sons. हो सकता है बहुत से बाप यहाँ पर बैठे हैं जो अपने मुर्दा बेटों को जो रूहानी जिस्मानी तौर पर खो चुके हैं, Be them spiritual or the biological ones. चाहे वो आपके रूहानी बेटे हैं या वाकई आपके तिबई सतह पर But बेटे there हैं। is a portion of your heart that cries for your lost sons. सॉरी, But there is a portion of your heart that cries for your lost sons. नहीं समझ There आया। is a portion of your heart. आपके दिल का एक टुकड़ा है जो कि आपके बच्चों के लिए रोता है. आपके दिल का एक टुकड़ा है जो आपका अपने बच्चों के लिए रोता है। But today, लेकिन आज yes, God is going to revive your lost sons and daughters. खुदा आपके मुर्दा बेटों को जिंदा करने के लिए Yes, sir, with his dunamis power, he's going to resurrect all of you in this place. वो यहाँ पर बैठे किसी के बेटे को भी एक सेकंड में जिंदा कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर दुनामिस कुदरत काम करती है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus is going to revive everyone that is seated in this जितने place. लोग यहाँ पर बैठे, यीशु मसीह आप सबको आज जिंदगी बख्शने जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया। And then this Son of God touched the coffin और फिर उस खुदा के बेटे ने उस कफन को छुआ and he stopped the funeral. और उसने उस चलते हुए जनाजे को रोक दिया। Yes, the moving funeral became still. जनाजा चल रहा था, अचानक से ये क्या, जनाजा रुक गया। But here he not only stopped the funeral, but here he did not only stop the funeral. सॉरी, फिर लेकिन उसने यहाँ पर सिर्फ जनाजे को ना रोका, उसने यहाँ पर आकर सिर्फ जनाजे को नहीं रोका, but he stopped the cry of the mother. उसने उस माँ के उस अंदर गम को भी रोक दिया। Hallelujah. हालेलुया। Every funeral that is moving in your life is going to stop today. आपकी जिंदगी में भी अगर जनाजा निकल पड़ा है तो आज वो जनाजा यीशु रोकने का। Hallelujah. हालेलुया। Shout out hallelujah. उठी आवाज नाल कहो हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. So those who had lifted the dead up on their shoulders, they stopped. और वो लोग जो मुर्दे को कंधा देकर चल रहे थे वो भी उसके साथ ही रुक गए। The problem today is that there will be many people who will uplift you when you're dead. आपको बड़े दुनिया में जिंदगी में ऐसे लोग मिलेंगे कि जब आप मुर्दा हालत में हैं तो आपको और चुक्के देंगे। You will be uplifted when you lead a crowd out of the city, out of the land of green pastures. जी भाई, ये कह रहे हैं कि उस वक्त आपको बड़ा उठाया जाएगा जब आप लोगों को हरी हरी चरागाहों से बाहर वीरानों में लेके जा रहे हैं। Do you see these uplifted people in the secular world? क्या आप देखते हैं ऐसे लोगों को सेकुलर वर्ल्ड में जिनको लोग बहुत उठा के रखते हैं, अपना स्टार मानते हैं? They're all spiritually dead people. वो सब लोग रूहानी तौर पर मुर्दा लोग हैं। They're leading a massive crowd out of the land of green pastures, out of the kingdom of heaven. और वो बहुत बड़ी भीड़ को खुदा की बादशाहत से बाहर लेकर जा रहे हैं। I'm warning you, you'll be uplifted. I'm warning you, you will be uplifted. मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, आपको भी ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बहुत उठा रहे हैं, But there will be no hope. There will be no hope of life. लेकिन कोई भी जिंदगी की उम्मीद आपको नहीं मिलेगी। Yes, they can only lift you up, वो सिर्फ आपको ऊपर उठा सकते but हैं, not give you the life. लेकिन आपको जिंदगी नहीं दे सकते। Oh, but here comes the giver of life. और फिर यहाँ पर मौका आता है जिंदगी देने वाला शख्स। He said to the mother, "Don't cry." उसने उस माँ से कहा मत रो। He will stop every people. He will stop every people who are uplifting you as dead person and are promoting you as a dead person. उर्दू बोल दें आप।
वो खुदावंद आपके जिंदगी में जो लोग आपको उठा रहे हैं उनको रोक देगा, जो लोग आपको उठा रहे हैं और दुनियावी तौर पर आपको Those who are lifting you up, He is going to stop all those cunning, corrupt people. Yes, and he will say unto you, और वो आपसे कहेगा, he said unto the dead, उसने मुर्दे से कहा, young man, arise. लड़के उठ, And the dead comes back to life. और वो मुर्दा मुर्दों में से उठ बैठा. हालेलुया. Power of my Jesus. ये है दुनामिस कुदरत Where मेरे there is no यीशु की. hope, he brings hope. और वो आपके लिए उम्मीद लाता Where there है. is no joy, he brings joy. Sorry. Where there is no joy, जहाँ खुशी नहीं है वो खुशी लेकर आता है. Where there is no joy, He brings the joy. Hallelujah. Hallelujah. So shout your greatest hallelujah for your Jesus. तो आज सारे हालेलुया चीख कर बोलने के रिकॉर्ड तोड़ दो. ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. It is written the dead man sat up और लिखा है वहां पर कि वो लड़का उठ बैठा and began to talk. और उसने बोलना शुरू कर दिया. And Jesus gave him back to his mother. और उसने यीशु ने उसको उसकी मां के सुपुर्द It कर says he दिया. began to talk. यहाँ पर लिखा है कि वो बोलने लगा. Now we are not sure of what he began to speak. लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो क्या बोलने लगा. We are not sure of his first words that came out of his mind, and that his mind processed when Jesus raised him from the dead. हमें अंदाजा नहीं कि क्या उसने ज़हन में क्या बात आई होगी जब वो जिंदा हुआ, क्या बोल रहा था बोले. But when I was preparing this sermon, लेकिन जब मैं ये कलाम तैयार कर रहा था, I put myself in his place. मैंने अपने आप को उस मुर्दा लड़के की जगह पर रख If दिया. I was in his place, अगर मैं उसकी जगह पर होता I would have said, truly you are the Son of God. तो मैं लाजमी ये कहता, तू वाकई खुदा का बेटा है. I once was lost, मैं खो गया था, but now I'm found. लेकिन अब मुझे ढूंढ लिया गया है. हालेलुया. Hallelujah. Still we are not sure of what he was saying. लेकिन फिर भी हमें नहीं पता कि वो लड़का जिंदा जब हुआ तो क्या बोल रहा है. Let's put, maybe he began to cry out for her mother. हो सकता है उसके उठते ही होश आई हो तो उसने मामा मामा कहना शुरू कर दिया हो. Let's put some of you in this place. This is funny. हाँ, है तो मज़ा ही ऐसी बात. अपने आप को रख के देखें, आपकी आंख खुलती है, मुर्दों में If से this जी उठते हैं. happened in today's era, लेकिन अगर ये इस दौर में होता, I know what some of you had to say. मुझे पता है कुछ हम में से लोग पता क्या करते हैं. अगर हमें कोई जिंदा करता तो हमने क्या करना था. Here comes Jesus. Here comes Jesus and he touches you. I'm not Jesus, but I'm just showing you. So here comes Jesus and he touches you. और यीशु आ रहा है और यीशु ने आपको छुआ, आप मुर्दा पड़े हुए हैं And you rise up from the dead. और आप मुर्दों में से जी उठते हैं. And this is what you say. पता आपने क्या कहना था. Where is my phone? और मेरा मोबाइल किथे है, Where's my iPhone? Where's my Android? और मेरा आईफोन, मेरा एंड्रॉइड किथे, एक पासवर्ड किथे. Wait, Jesus, wait. I need to restore my internet connection first. एक मिनट यीशु ठहर जा, मैं उठ गया, मैं जरा इंटरनेट कनेक्शन बहाल कर लूं. Where is my beautiful wife? और मेरी सोनी बुड्ढी किथे गई. My handsome man, where are you? I'm come back. ओ मेरे मियाँ किधर हो, वापस आओ प्यारे मियाँ. I have come back to you. मैं वापस आ गया हूँ. My love, I have come back. मेरे प्यारे, मेरी प्यारी, मैं वापस आ गया हूँ. Thank God I can enjoy the world again. खुदा का शुक्र हो कि मैं इस दुनिया में फिर तबाही Thank फैला. God I can enjoy the lust of the world again. मैं दोबारा से दुनिया की लज्जत और हवसों को एंजॉय करूंगा. Well, you are laughing, but this is very serious. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੰਦ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਜੇ. Yes, this is very serious. ये बहुत संजीदा मसला. All of us, many of us are dead here. बहुत से लोग यहाँ पर शायद मुर्दा हालत में And हैं. God is going to revive us today with His खुदावंद- resurrection dunamis power. अपनी डुनामिस कुदरत से आपको आज बहाल करने जा रहा है. But is this what you'll do when Christ revives you? आप क्या ऐसा आप भी करेंगे अगर खुदा ने आपको जिंदा किया तो? Well, if God raises you from the dead, you're spiritually revived, then is this what you'll do? अगर आप रूहानी तौर पर मुर्दा थे और आज आपको जिंदा किया जाए तो क्या आप भी यही करेंगे जैसे वो मोबाइलों के लिए पुकार रहा था? Rather than glorifying Jesus, we stick to our old ways. बजाय इसके कि आप यीशु के नाम को जलाल दें, रूहानी तौर पर जिंदगी पाने के बाद आप अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाएं. This is very serious. Listen to me seriously. ये बहुत संजीदा मसला है. You stick to your evil deeds. आप अपनी बुराइयों के साथ ही चिपके रहते हैं. Even after seeing the work of the Holy Spirit in our lives, रूल कुछ के काम को अपनी जिंदगी में देखने के बावजूद आप अपने माजी के साथ we चिपके stick रहते to हैं. our old life. हम अपनी ही जिंदगी, खुदकार जिंदगी में We वक्त stick to गुजारते हैं. our evil plans. हम अपने बुरे मंसूबों के साथ ही जुड़े We रहते stick हैं. to our sinful life. हम अपनी गुनाह आलूद जिंदगी में ही लिपटे रहते हैं. We stick to our old thinking.
हम अपनी पुरानी सोच के साथ ही चलते रहते Yes, we stick to everything that is against the word of God. हम हर उस चीज के साथ चिपके रहते हैं जो खुदा के कलाम के मुनाफी है। Are you getting my point? मेरे नुक्ते को आप समझ रहे हैं? God is going to revive you. I can assure you of that. खुदा आपको बहाल करना चाहता है, मैं आपको इसकी जमानत देता हूं। But is this what you'll do when God revives you? या लेकिन क्या आप ऐसा करेंगे अगर खुदा आपको आज नई जिंदगी दे? You must stop it all. सॉरी, You must stop it all आपको फौरन ये सब कुछ को स्टॉप करना है and take a good look at the hands that were nailed for your resurrection. और उन हाथों पर निगाह दौड़ानी है जो आपकी खातिर सलीब पर छेदे गए। Begin praising and worshiping your King. अपने खुदा की, अपने बादशाह की परस्तिश Oh, when you करना get शुरू करें। blessed today, और अगर आज आप बरकत पाते हैं, you're gonna adore Christ for that. सॉरी You're gonna adore Christ for that. आप बोल दें, अगर आपको खुदावन आज बरकत देता है तो आपने खुदावन की इबादत करनी है। If God is going to You have bless to you adore tonight, Christ for then that. you must worship Him. Yes, आज खुदावन आपको रहाई अता करेगा। टुडे गॉड इज गोइंग टू रिवाइव यू और जब आप घर जाते हैं, एंड व्हेन यू विल गो होम, then you must. तो फिर जरूरी है कि आप अपनी पुरानी जिंदगी के साथ ना चले, then it is necessary that you should not stick with your old life. बल्कि यीशु मसीह नासरी को अपनी जिंदगी दे दे। Instead, you give your life You to your reject your old Jesus. life. Sorry? You reject your old life. अपने आप पुरानी जिंदगी को रद्द करें, You get a new life from Christ. और यीशु Hallelujah. से नई जिंदगी को हासिल करें। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Praise God. So are you ready tonight? क्या आप तैयार हैं आज? Are you ready? I said, are you ready to receive a mighty touch from God? I said, are you ready to be resurrected from the dead? क्या आप तैयार हैं कि मुर्दों में से जिंदा किए जाएं? Then give a big round of applause for what the Holy Spirit is about to do in your life तो right फिर now. जो पाखरू आपकी जिंदगी में इस वक्त करने लगा है, उस बात के लिए जोरदार तालियां बजाओ। In fact, He's already at His work. वो पहले ही आपकी जिंदगी में काम कर रहे हैं। जोरदार ताली कैसे बजती है, बजा के बताओ। हालेलुया, Glory to King. Glory to the King. Hallelujah. हालेलुया। बादशाह के नाम को जलाल मिले। So mothers, don't cry. सो माओ मत रो, Your sons are returning back in Jesus' name. आपके बेटे वापस आ रहे हैं। Hallelujah. ईमान लाए। This हालेलुया। dunamis power is going to take over all of you, all of your bodies. और यही डुनामिस कुदरत आप में से हर एक को अपने कंट्रोल में लेने जा रही है। We are ending the service and we are on the end part, but I want you to look at what happened after Jesus raised the dead in the city of Nain. इबादत इख्तिताम को पहुंच रही है, लेकिन ये थोड़ी सी बातें सुन लें कि क्या हुआ जब यीशु ने उस मुर्दे को जिंदा किया तो शहर में क्या बात फैल गई। The scripture says they were all filled with awe कलाम में लिखा है और वो सब पर दहशत छा गई and they praised God. और वो खुदा की तमजीद करके Everybody stop. सब लोग रुक गए। Everybody stop right here. आप सब रुक जाए. आप सब लोग यहाँ पे रुक जाइए। Let's turn back to the last part of verse 12. हम 12वीं आयत के आखिरी हिस्से पे जाएंगे, जरा It says- ध्यान कीजिए। It says a large crowd from the town was with her. लिखा है कि एक बहुत बड़ा क्राउड उस औरत के साथ था एक बहुत बड़ा हजूम उस औरत के साथ था. This crowd included और इस हजूम में or must have included or must have included या होगा. या हो सकता है कि उस हजूम में कुछ लोग हों, It may have the doctors of the town, हो सकता है उसमें डॉक्टर्स मौजूद हों, तबीब मौजूद हों, the physicians of the town. तबीब उस शहर के हों, Maybe the physicians and the musicians were also there. हो सकता है म्यूजिशियंस भी वहां पर मौजूद हों, परस्तार भी हों, maybe the rich people were also there. हो सकता है बहुत वहां के मशहूर वडेरे अमीर लोग भी वहां पर हों। In that crowd, the skilled painters, maybe they were also there. The painters who could bring life to their paintings with their paints and paint brushes. और हो सकता है वहां पर भी अजराया की तरह के बहुत से मुसन्निफ, बहुत से तस्वीरें बनाने वाले मौजूद हों, जैसे इनमें भी टैलेंट है। Maybe the Pharisees and the teachers of the law were also और there. वहां पर फरीसी और शरअ के मुअल्लिम भी मौजूद हों। It says all were filled with awe. It says all were filled with awe. यहां पर लिखा है उन सब पर दहशत छा गई। They were all shivering. वो कांपने लगे, उनकी कांपे लगी, क्या है कि कांपे टांगने लगी। You know shivering, kampe टांगे को. This. उनकी टांगे कांप रही थी। उनकी कांपे टांग रही थी. चलें दोनों चलते हैं। उन पर दहशत छा गई जी, वाकई जब वो घबराए हुए थे, Well, they were shocked. वो वाकई भाई शौक में आ गए थे। You know why? पता है क्यों? Because nobody from this list क्योंकि इस लिस्ट में से जिसका जिक्र अभी भाई ने किया, could give life to the dead.
उनमें से एक भी माई का लाल नहीं था जो उस मुर्दे लड़के में जान डाल Oh yes, सकता। the doctors were they were shocked. The doctors were shocked डॉक्टर भी हैरान थे because they could not give life to the dead. क्योंकि वो भी मुर्दे में जान न डाल सके। Oh yes, their medicines were not working. उनके कुछ भी वहां पर काम नहीं हो रहा था। The musicians, there were many musicians here. म्यूजिशियंस वहां मौजूद थे पर उनके साजों से कोई मुर्दा जिंदा नहीं हो रहा था। ऐथे भी बेताशा मरासी बैठे ने। Oh, we say that music gives life to soul. कहा जाता है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, But this is not the life of the dead. It does not give life to the dead. लेकिन वो मौसीकी जो रूह की ग़िज़ा है जो जान डाल सकती है, उस मुर्दा लड़के में म्यूजिक भी जान ना डाल सका। The musicians could not do anything. म्यूजिशियन भी फेल हो गए, The physicians could not do anything. तबीब भी फेल हो The गए, skilled painters who would bring life to their paintings with their paints, with और their वो- paintbrushes, could not raise the dead, could not bring life to the dead. और वो मुसफ़िर जो अपने कलम से खूबसूरती के साथ तस्वीरों में जान डाल सकते थे, उनका कलम भी टूट गया, उस मुर्दे में वो जान न डाल सके। Maybe there were some theologians there in that crowd too, who had the knowledge of the scripture. वहां पर थियोलॉजियन भी शायद उस ग्रुप में हो जिनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है स्क्रिप्चर का। They could also not raise the dead. इल्म इलाहियात के वो एक्सपर्ट भी उस मुर्दे को जिंदा ना कर ना सके कर सके. Yes, they could not give life to the dead. और वो भी मुर्दे में जान ना डाल सके। This is why they were shivering. इसी वजह से उन सब पर दहशत छा They were all shocked वो सब बहुत बड़े शौक में थे because a man क्योंकि एक शख्स named Jesus जिसका नाम यीशु था, had this dunamis power. उसके अंदर ये डुनामिस कुदरत He was leading his crowd into the city of into the land of green pastures. और ये वो था जो लोगों को हरी हरी चरागाहों में लेकर जा रहा था। He had this dunamis power. उसके पास वो कुदरत थी, He raised the dead उसने मुर्दे को जिंदा किया and indirectly told all of these people, और उसने इनडायरेक्टली लोगों को ये बात, ये मैसेज दे दिया। don't follow the dead, follow me. यीशु ने ये मैसेज दिया, मुर्दे के पीछे ना जाओ, Follow me. मेरे पीछे आओ। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. You must follow him and you will see your shackles falling off your hands and your wrists and whatever they are. और आप उसके पीछे अगर चलेंगे तो आपके सारे बंधन, मौत के बंधन खुलते चले जाएंगे। Hallelujah. Do you believe it tonight? क्या आप भी आज शाम आप भी ये यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं कि ऐसा हो सकता है? क्यों जी रखते हो? Those in the end, don't you believe that God is going to revive you, is going to touch you? वो जो मुर्दे थे, क्या आप ईमान रखते हैं कि आज खुदावंद आपके इस मुर्दा रूह के इस मुर्दा हिस्से को जिंदा करने वाला God है? is going to touch you tonight. खुदावंद आज शाम आपको छूने वाला है। Today your heart will be shivering. आज आपका दिल कांपने लगेगा, Yes, you will be shocked. आप भी हैरान रह जाएंगे। Well, maybe your heart is shivering too. Your body is electrocuted. हो सकता है आपके दिल के ऊपर ऐसी घबराहट से आपको फील होने लगे और This आपको is- ऐसे लगे जैसे बिजलियां गुजर रही हैं। This is the anointing of the Spirit of God और ये रूह का मसा है जो इस वक्त तेरे दिल को छू रहा है, that is here tonight to set you free. जो इस जगह पर मौजूद है ताकि तुझे रिहाई Hallelujah. बख्शे। Do you believe हालेलुया। it? The King of Kings is here tonight. कितने जो ईमान रखते हैं कि बादशाह का बादशाह यहाँ पर मौजूद है? Hallelujah. He is going to heal you tonight. वो आपको आज शाम शिफा देने लगा है। I cannot give you the miracle. मैं आपको कोई मोजा नहीं दे सकता, These doctors also cannot give you the miracle. ना ही कोई और शख्स मोजा दे सकता है। Oh yes, the 4 miracles that we studied, that we discussed today, जो 4 मोजे आज हमने यहाँ पर पढ़े हैं, the people of this world cannot give them to you. ये 4 किस्म के मोजात जो आपने पढ़े, दुनिया के लोग आपको ये नहीं दे सकते। Only Jesus. सिर्फ यीशु दे There is सकता no one else than Jesus. है। सिर्फ यीशु है जो ये कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं है। Hallelujah. कोई और नहीं जो ये 4 किस्म के मोजे तेरी जिंदगी में करे। एक भी मोजा कोई नहीं कर सकता, ये यीशु है। हालेलुया। Hallelujah. And this people of the world और इस दुनिया के लोग that we find in Luke chapter 7, जो लूका के 7वें बाब में हमें नजर आते हैं, that were with the widow, हम इस बेवा के बारे में हम देखते हैं। they said, a prophet, a great prophet has appeared among us. वो जो उस बेवा के साथ साथ चल रहे थे, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर एक बड़ा नबी बर्पा हुआ है। In the Old Testament, पुराने अहदनामे में, 1 Kings chapter 17, और ये पहला सलातीन उसके 17वें बाब में आपको ये वाकया मिलता है पुराने there अहदनामे में। Elijah the prophet raised a son, raised the son of the widow वहां पर आपको एलिया नजर आता है, बेवा के लड़के को जिंदा करता है, with the same style, with the same style. इसी अंदाज में। But लेकिन do you know that
he was not Elijah the prophet. सॉरी, Do you know that he was not Elijah the prophet? लेकिन लोगों को गलत फहमी थी कि शायद ये एलिया है। उनको अंदाजा नहीं था कि भाई ये एलिया नहीं था। Wait, they thought he was Elijah. उनको ये लगा कि शायद ये एलिया है They आ thought गया, he was a prophet. They लेकिन thought वो he was a नबी नहीं था। prophet. But they did not know लेकिन वो ये नहीं जानते थे he was not Elijah the prophet, वो एलिया नबी नहीं था। but he was the one even Elijah prayed to. ये तो वो था हालेलुया। जिससे एलिया भी दुआएं मांगता Oh रहा। yes, he is the one even the prophets prayed to raise the dead. और ये तो वो है जिसके आगे अंबिया कराम दुआएं मांगते रहे हालेलुया। ताकि मुर्दे में जान डाल सके। हालेलुया। यहाँ वो उतरा है। He is the water of life that these prophets were thirsty for. ये वो जिंदगी का पानी था जिसके लिए वो नबी तरसा थे। Are you thirsty for the water of क्या life? आप भी उस जिंदगी के पानी के प्यासे हैं? I asked, are you thirsty for the power of God to touch you tonight? क्या आप भी खुदा की उस कुदरत के प्यासे हैं Do कि you आज want- रात आपको छुए? Yes, do you want the dunamis power to hit you tonight? क्या आप चाहते हैं कि यही ड्यूनामस कुदरत आपको आकर हिट करे? Then stand up on your feet. तो फिर अपने कदमों पर जल्दी से खड़े हो You're जाएं। gonna see miracles of God. आप खुदा की कुदरत को देखेंगे Your hunger for righteousness can only be fulfilled through Him. और आपके रूह की रास्तबाजी की प्यास सिर्फ और सिर्फ यीशु Oh, बुझा begin सकता praying. है। अपनी Everybody आंखें बंद lift up कीजिए, your hands. अपने हाथ बुलंद कर लीजिए, Close your eyes अपनी आंखें बंद कीजिए। and begin to pray. वो लोग जो कहते हैं कि मौजे सीज हो गए हैं, मैं आज उनको बताना चाहती हूँ कि मेरे यीशु की कुव्वत कल भी निकलती थी, आज भी निकलती है और हमेशा तक निकलती रहेगी। हालेलुया। He said unto the dead, उसने मुर्दे से कहा, young man, arise. लड़के उठ। And the dead comes back to life. और वो मुर्दा मुर्दे में से उठने था। हालेलुया। Power of my Jesus. Holy Spirit, your fire, your fire, your fire in the name of Jesus Christ. ओ जब मैंने इसको देखा, यूहन्ना आरिफ लिखता है, जब मैंने इसको देखा तो उसके कदमों में मुर्दा से होकर गिर पड़ा और उसने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे छुआ और कहा, मैं कल और आज और अब तक यकसा हूं। मैं मर गया था और देख अब दिन बाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां मेरे पास है। दुआ करना शुरू कर दे बुलंद आवाज से Begin to pray to the King. और अपने बादशाह के आगे दुआ करना शुरू कर दें। आने वाला है. So he is here to fill your thirst. Yes, He's going to touch you tonight. आज रात वो आपको छूने वाला है। कि जब मैं अपने घर से निकली तो मैं टूटी हुई, थकी हुई और हारी हुई थी। मैंने ये सोच लिया था कि अगर आज खुदा ने मेरी ज़िंदगी के अंदर काम ना किया तो ये ज़िंदगी नहीं रहेगी। मैंने अपने दिल को और दिमाग को सुसाइड के लिए पूरा प्रिपेयर कर लिया था। मगर अभी जब मैं यहाँ पर आई, जब भी कलाम सुना रहे थे तो उन्होंने कहा कि खुदा आज आपके दिलों को छुएगा और जिसे खुदा छुएगा उसका दिल कांपना शुरू हो जाएगा। और मैं इस चीज़ को ऑनेस्टली खुदावंद की हज़ूरी के अंदर खड़ी इस चीज़ को बयान कर रही हूँ कि मैंने उसकी रूह की हज़ूरी को बड़ी गहरे तौर पर अपने दिल को छूते हुए देखा और मैंने खुदा को एक बड़ी रोशनी की सूरत में अपने आप को छूते हुए देखा। मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ और जब मैंने दुआ के लिए आना था तो मेरी शुगर 798 हो चुकी थी। तो इस वजह से मैं एक मरतबा लेट जाती थी, फिर उठ जाती थी, फिर मुझे खुदा की रोया हुई सो गई मैं कि तू जा और तू शिफा पाएगी। और मैं आई और मुझे आज गैर ज़ुबान भी उतरी और एक बार सी रोशनी आई और यीशु मसीह ने मुझे हील किया। हालेलुया। तो मैं काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा मेरी टांग में दर्द हो रही थी, तो जिस तरह मैं दुआ भी कर ही रही थी, नीचे आई और बिल्कुल ठीक मेरी टांग भी हो गई और शुक्र है खुदावन का कि चलते चलते सही से मैं ऊपर भी गई।
बहुत बहुत शुक्र करती हूँ मैं यहाँ पे आई हूँ। मुझे 2-3 महीने हो रहे हैं कि मैं घर में बीमार पड़ी हूँ। मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द, जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द। मैं डॉक्टरों के पास जा दवाइयाँ ले नहीं आराम आ रहा था। आज मैं खुदावन के घर में आई हूँ और खुदावन ने मुझे छुआ है और ब्लेस किया है। मैं शुक्र करती हूँ खुदावन। मोरे की तकलीफ़ थी लेकिन मैं स्टिक खड़ा नहीं हो सकती थी। तकरीबन मोरे की तकलीफ़ थी। मैं बार बार उठती हूँ और बैठ जाती हूँ, मेरे से स्टिक खड़ा हुआ ही नहीं जाता था ना। तो जब मैं आई हूँ 2 दफ़ा खड़ी हुई हूँ, फिर मैं बैठ गई हूँ। मैंने बोला मेरे से नहीं खड़ा हो जा रहा। फिर जब आखिरी दवा हुई है मैं खड़ी हुई हूँ, लेकिन मुझे कहीं दर्द नहीं हुआ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाकी मैं सीढ़ियों से नीचे आ सकती हूँ। मेरी सबसे बड़ी गवाही ये है कि मेरे 3 ऑपरेशन हुए थे। तो जब से ऑपरेशन हुए हैं तो मेरी दर्द जाती नहीं है कमर से। तो मैं जब यहाँ आई थी तो मेरी इतनी दर्द थी ना कि कोई इंतहा नहीं है। कोई काम करती थी तब भी दर्द होता था मुझे। तो यहाँ आई हूँ मैं, यहाँ मुझे बैठा नहीं जा रहा था, इतनी तकलीफ़ में थी, फिर भी मैं यहाँ बैठी। तो जब मैं पास्टर के पास आई हूँ, पास्टर ने मेरे लिए दुआ की है तो दर्द एकदम से गायब हो गया है। लास्ट वीक और उससे पीछे मुझे चेस्ट पेन शुरू हो गई थी और जिससे मेरा बीपी भी जो है ना वो फ्लक्चुएट कर रहा था। तो जब मैं यहाँ पे आई हूँ तब भी मुझे चेस्ट पेन थी, लेकिन जब पास्टर साहब दोनों जो आपके चाचा और भाई हैं, इन्होंने हाथ रखा और उसी टाइम एक तेज़ दर्द या बिजली जैसी कुव्वत ने छुआ और मैंने उसी टाइम अपने पेन से जो है वो शिफा पाई। आपने देखा खुदा के खादमों ने हाथ रखा और मोर्चा किसने किया? अगर वो हट जाए तो खादिम भी कुछ नहीं कर सकता। हौज के 5 कोने भी नहीं बचा सकते, जिंदगी का पानी बचा सकता है। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। तो जैसे ही पास्टर सपान दुआ कर रहे थे और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे अंदर कोई कुव्वत दाखिल हो रही, जैसे मेरा जिस्म ऊपर हेड टू फीट तक वाइब्रेट हो रहा। तो इसके लिए खुदा का शुक्र।